Good evening, sir. This is Ankit Tiwari from NIT Agartala. I am pursuing masters in NIT Agartala. Sir, I have a question that if we are preparing for something, in general, I am asking if we are preparing for something. Now, sir, once we have told that we have to not worry about results. Ultimately, I also think that we should not worry about results. But ultimately, I have that in mind that if I am doing something, that I should come out with that result. I also think that I should not think about result, but at the back of my mind, I have that what the result will be. So how to be cool? Simple that how to be cool. I want to be cool that I don't want to worry about results. But that result is ultimately fearing me that what will be the result. The result that you think of is a Yes, sir. programmed concept. Yes, sir. Its definition can be changed. Its definition can be changed. It's like this, you see. Yes, sir. We all keep looking towards the 30th of the month. Let's say. And why do we keep looking towards 30th of the month? Because the paycheck arrives on the 30th. Right? Okay, sir. Yes, sir. Now the arrival of the paycheck on the 30th makes the 30th so important. It's not that the 30th is by itself important. What makes the 30th important is that the paycheck arrives on the 30th. All right. We start thinking as if 30th is a special date, as if 30th carries an intrinsic value. Challenge that. How? Start paying yourself every day. Start paying yourself every day. Now, is the 30th important anymore? Let's say every day evening you get paid. On the 1st, you get paid for what you have done on the 1st right at 6 p.m. Till 6 p.m. you worked and you got it. Second you worked till 6 p.m. and you got paid, and that's the way it happens throughout the month. Now the 30th is no more important. Are you getting it? Change the definition of result. Tell yourself that success consists of excelling at every point in the process. So there are these 30 points in the process. Now I am not worried about merely the 30th, the last point. There are 30 points in the process. Now I am not worried about merely the last point. Success consists of excelling at the first point, at the second point, at the third point. Just as you can be paid on the first, on the second, on the third, you can be paid continuously. Why should you accumulate everything and make the 30th a big date? Tell yourself, my success is not determined by what happens on the last date at the last step. My success is determined daily. If I did well today, I have succeeded. I have succeeded and I can celebrate, or rather the celebration lies in doing well itself. I don't even need to separately celebrate. You'll have to reprogram yourself, or rather deprogram, because we have been trained by our biology and the society to think only of the end point, to think only of the 30th. You will have to educate yourself to think of the entire chain, because everything is as important as the last point, and then it will be far better for you. Obviously, you will then need supporting circumstances as well, because if there are people around you who just keep asking of what happens at the last point, then you too will feel as if only the last thing is the most important. The last thing is not the most important thing. The last thing does not even exist, I dare say. All that exists is here, right now, where you have the capacity to change things.
Can you decide what happens on the 30th? No, but you can decide what happens today. And today is what? 22nd. So the 22nd is where your success and failure lies. But you keep thinking of the 30th, whereas everything is being decided on the 22nd. And everything will again be decided on the 23rd, and then on 24th, and then on 25th. So educate yourself to think this way, or rather not think in terms of just the final milestone. Sir, I want to ask if I have listened to a video. If I'm not wrong, I have listened to a video that I have listened to one of the which hits me a lot. Sir, can I speak in Hindi if you don't mind? It would be good for me to express my feelings. That it's my request to you. बोलिए. आपने कहा था कि जब आप 100 रुपए का नोट खर्च करते हैं तो उसके लिए आप एक नहीं 50 बार सोचते हैं. I have listened and I am listening to you continuously. That's why I'm asking to you. आपने कहा था कि जब 100 रुपए का नोट खर्च करते हैं तो उसके लिए आप 1000 बार मतलब 50,000 बार सोचते हैं, जो भी है सोचते हैं आप. ठीक है सर, ये तो हमारी लाइफ है जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि ठीक है सर, हम किसी प्रिपरेशन में 1 साल दे रहे हैं या फिर 2 साल दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं. नाउ सर, एक बताइए, जब आप ये चीज कह रहे हैं कि हम 100 रुपए का नोट खर्च करने पर 1000 बार सोच सकते हैं, तो हम फिर तो 2 साल दे रहे हैं. शायद ये 2 साल कहाँ हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये भी हम नहीं सोच सकते हैं. बट ये 2 साल हैं, ये तो हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट है और हम कहाँ पहुंच सकते हैं. बट हम उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें. हमें ही पता कि नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इट इफेक्ट्स हमारे प्रिपरेशन. ऑब्वियसली कि आज हम IIT जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IAS की किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इफेक्ट्स आवर प्रिपरेशन ऑब्वियसली. बट सर अल्टीमेटली वो रिजल्ट तो बार बार आ ही रहा है दिमाग में, और आप वो 100 रुपए की बात कर रहे हैं. मतलब सर मुझे ये मानना है कि वो मतलब आपने ये भी कहा था कि 100 रुपए के बारे में हम इतना सोचे, बट बात तो वहीं पर आ जा रही है कि हम अपने जिंदगी भर की कमाई वहां पर लगा रहे हैं. और सर बात ये है कि हम तो 2 साल लगा रहे हैं, बट एज ए मिडिल क्लास फैमिली हमारे माँ बाप तो अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा रहे हैं. हमारे माँ बाप तो अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा रहे हैं. और फिर अगर वही बात है कि हम कैसे ना सोच पाए, वो दिमाग में बार बार आ रहा है. जैसे आपने अभी बोला कि ठीक है मत सोचो उसके आगे बार, आपने बोला कि आज ये देख लो कि आज आप क्या कर रहे हो या फिर कल आप क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो. मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुझे कोई भी डाउट नहीं है उस चीज पे कि हाँ, वी शुड नॉट मेक अ बिग गोल्स, वी शुड मेक अ स्मॉल गोल्स. आई ट्रूली एग्री विद दैट. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिग गोल. नहीं, सुनो, ये नहीं कह रहे हैं कि बिग गोल मत बनाओ और स्मॉल गोल्स बनाओ, वो वाली बात नहीं हो रही है. बात हो रही है कि तुम्हारी शक्ति के भीतर भविष्य आता ही नहीं है. भविष्य सिर्फ एक सिद्धांत होता है, भविष्य सिर्फ एक कल्पना होती है. आप बना लो पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य, लेकिन वो पहाड़ आपकी ताकत के भीतर नहीं है. आपकी ताकत के भीतर तो बस वो हथौड़ा है जो अभी आप चला रहे हो. पहाड़ तो एक कल्पना है बहुत बड़ी. तो आप बना लीजिए पहाड़ से बड़ा लक्ष्य, आपको चढ़ जाना है पहाड़ पर. ठीक है, अब कल्पना करो पहाड़ पर चढ़ना है तुमको और बहुत दूर है उसका शिखर. अभी नजर कहाँ रखना चाहते हो? बहुत ऊंचा पहाड़ है और एकदम खड़ी चढ़ाई है. नजर कहाँ रखना चाहते हो? शिखर पर या जहां पांव रखने वाले हो वहां पर? बोलो. सर लेकिन जब तक शिखर पर नजर नहीं रखेंगे तो फिर जमीन पर पांव रखे भी कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से. तो तुम शिखर पे पहुंचना है तो शायद मेरे हिसाब से तो जो कोई शिखर पे चढ़ा हो उससे पूछना कभी कि शिखर पे चढ़ना हो तो नजर कहाँ रखनी होती है. जो चढ़े हो उनसे पूछना कि कहीं भी चढ़ना हो तो नजर कहाँ रखनी होती है. वास्तव में जो गंभीर होते हैं शिखर पर चढ़ने के बारे में, वो शिखर की ओर देखते ही नहीं.
और शिखर की ओर देख देख करके कल्पना करने वाले और शिखर के मजे लेने वाले कल्पनाओं में वो कभी शिखर तक पहुंचते नहीं। जिन्हें शिखर तक पहुंचना होता है उनकी नज़रें बिल्कुल अपने पाँव के नीचे होती हैं, कहाँ अगला पाँव रख रहा हूँ। जिसने नज़र ही शिखर पर रख दी वो कविता तो अच्छी कर सकता है कि खड़े खड़े शिखर को लेकर कविता कर रहा है, पहुंचेगा कभी नहीं शिखर पे। अगले ही पल वो फिसल के गिरेगा नीचे शिखर से उल्टी दिशा में। सर लेकिन मतलब मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मतलब आई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि सर जब हम मतलब हम कोई एम बनाते हैं फिर कोई टारगेट बनाते हैं बना लिया, तो मतलब हम बना लिया, उसके मतलब बना लिया, अब सर क्या करना है, सोचते ठीक रहना है, उसके बारे में। नहीं बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, ये तो मैं कभी नहीं तो सोचना है, हाँ ये तो मैंने बना तो के बिल्कुल बना नहीं लिया, सोचना, मैं छोड़ सोचना दिया। है कि हाँ हमारे अब बना लिया, अब छोड़ दो ना, अब काम नहीं करो। सर, छोड़ो भी नहीं तथ्य सर, बन बट गया। जो अब प्रोसेस है छोड़ने से मेरा अर्थ है कि बना लिया, जो वो बात अब तय हो गई, उसको अब रख दिया ना। बना के रख दिया जाता है ना, बन गया, हम्म रख दिया। हम्म, एक चीज बना ली, तय हो गई, उसको रख दिया, अब क्या करना है, वो तो बन गया, अब क्या करना है, अब काम करना है। और काम कहां करोगे? हाँ सर, जैसे आपने अभी कहा कि ठीक है सर, मैंने कुछ एम बना लिया, ठीक है सर, मैंने एम बना लिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये आईएएस पास आउट करना है। मैं उस रिजल्ट के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा, ये मेरा मेरा प्रोस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग है कि मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रहा। खत्म होना नहीं होना वो चीज बात खत्म, होगा नहीं होगा, बहुत से लोग प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होगा ठीक है, वेल एंड गुड, बट आई एम वरिंग अबाउट माई प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, जितना मेरा 100% होता है वो मैं कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली एट द बैक ऑफ द माइंड बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने शायद अपनी लाइफ की पूरी प्रिपरेशन वहां पे दे चुके हैं, अपनी लाइफ का पूरा टाइम वहां पर दे चुके हैं, बट सर एट द बैक ऑफ द रिजल्ट तो आ रहा है, वो वो आ रिजल्ट तो रहा आ रहा है, है कि वो नहीं आ यार रहा है तुमने क्योंकि 2 साल तुम, रहे, हाँ तुमने वो आ जी रहा सर। है क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को लेकर के गंभीर नहीं हो, उस लक्ष्य को लेके सच्चे नहीं हो। नहीं तो तुमने बैक ऑफ द माइंड में जगह छुपा के चोरी से कैसे रख ली होती कि यहाँ पे मैं कुछ और सोचता रहूंगा। तुम कह रहे हो तुम्हें कोई परीक्षा देनी है गणित की, अब सामने गणित का सवाल है, यस सर। तो पूरे दिमाग में वो गणित का यस सर। सवाल चलना चाहिए ना। आधे दिमाग में तो अभी तुम्हारे भविष्य चल रहा है, तो गणित का सवाल हल होगा नहीं, और भविष्य में जो तुम चाहते हो तुम्हें वैसे भी कभी मिलेगा नहीं। सर लेकिन सर सर लेकिन सर मेरा मानना ये है ना, जैसे आपने अभी कहा, क्योंकि मेरा भविष्य भी तो उस गणित के सवाल से जुड़ा हुआ है, अरे भैया, तो सर भविष्य भविष्य कल्पना तो है अभी। आएगा ही। आएगा तो फिर रखे रहो, आएगा तो रख लो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तुम अगर निष्कर्ष ही बता रहे हो तो निष्कर्ष तुम्हारा तुम्हारे साथ है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। आएगा तो आने दो, रखे रहो। ये सर वही मैं मतलब वही मैं चाह रहा हूँ, उससे कैसे दूर रहें। बोल तो दिया, ईमानदारी से। जो चाहते हो अगर उसके प्रति ईमानदार होगे तो उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे। अब ये बात आसानी से घुस नहीं रही है दिमाग में। जो चाहते हो अगर उसे ईमानदारी से चाहते होगे तो उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, बस काम करोगे। और जो चाहते हो अगर उसको ईमानदारी से नहीं चाहोगे तो उसके बारे में सोचोगे ज्यादा, काम कम करोगे। तुम सोचने के ही मजे लूटते रहोगे, क्योंकि सोचने में ही बड़ा अद्भुत आनंद होता है ना। सोचे जा रहे हैं, चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, काम कौन करे, सोच लो। यस सर। इतनी आसानी से समझ में भी आ गया। नहीं सर, इतनी आसानी समझ में तो नहीं, बट ठीक है, आई विल ट्राई समझ, तो सर आपने बता दिया, हम सीख सकते हैं, वही बात है, चलो ठीक। बट आई विल लर्न। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच सर। Acharya, we have now come to the end of the first part of today's session. Right. I will request Shashi to make the closing address, please. Shashi, can you switch on your video, please? Am I audible, sir? Yes, please go ahead, Shashi. Yes, sir. So
So, sir, thank you, Acharya, sir, Guruji, for giving us your valuable time and effort. It was a very fruitful session, and we learned a lot. So, I hope in future we can have this opportunity once again. So, thanks once again for providing us this wonderful opportunity. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.